फिल्म मेकर को सबसे पहले तो ये सोचना होगा कि यार मैं ये जो फिल्म प्लान कर रहा हूँ, मेरी फिल्म के ऊपर कोई बंदा 1,000 रुपया क्यों खर्च करेगा। उस क्यों का सवाल अगर आपके पास है तो आप भाई फिल्म बना लें। ये फिल्म ने उस वक्त 40 से 45 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है जब 100% टैक्स होता था और टिकट रेट कम होता था। आज हम फिल्में बना रहे हैं, लेकिन फिल्म के अंदर एक जो फिल्म की रूह होती है वो समहाउ कहीं ना कहीं लैक करती है। हमारे जो डायरेक्टर्स हैं टेक्निकली उन्हें कंप्लीट अवेयरनेस है, एस्थेटिकली दे आर गुड। उस गवर्नमेंट को इन्वॉल्व होना पड़ेगा यार। गवर्नमेंट से पैसे नहीं मांगते फिल्म मेकर, बेकारी नहीं है भाई। My today's very special and senior guest is a renowned filmmaker who's seen the yesteryears of Pakistani cinema as a producer and a director. He has been part of the Lollywood culture, still is, but I'm sure his experienced days has witnessed the decline and also been part of the resurrection. A senior veteran who understands the mechanism of viewership and box office merge with Pakistani requirement of audience to have blockbusters to his credit. He has played a phenomenal role in ensuring the existence of Pakistani cinema in all its glory, which many people might not be aware of. Films that have garnered him accolade, recognition, repute, and success as a producer include Gungat, which was directed by Syed Noor, which was also part of the Tashkent International Film Festival and Dubai Film Festival, and played a massive role in success in Pakistan. Nikah as a producer, the classic Aina, directed by Sangeeta Ji, and also made it to the SARC Film Festival in Sri Lanka. As a director, Rukhsati, Mohabbat Sachiyan, which was showcased at South Asian Film Festival India, Muscat International Film Festival, and SARC Film Festival Sri Lanka. And we can never forget the mega starrer Ishq Khuda, which had the likes of Shan, Humayun Malik, Ehsan Khan Meera. With the very recent, very powerful salute in remembrance to the brave Etiza Hassan, who laid down his life to prevent the suicide attack in Hangu village. Ladies and gentlemen, I have with me Sir Shahzad Rafiq, who is also part of the very, very active film fraternity, which we call as the Pakistan Film Producer Association, and he's taken out time for a very small filmmaker like me to talk about the systematic problems behind the curtain. Sir, Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। सर सॉरी, मुझसे अगर कुछ गलती हो गई हो इंट्रोडक्शन में, मैं यू नो I'm research and everything, so please forgive me for that. How are you doing? I'm fine. You've played a very, very phenomenal role in the very yesteryears of Pakistani cinema and the films. You are coming from a family of filmmakers as well, and I believe you have a lot to add, which will act as a resource for lots of young people watching. और अगर मेरे पास ये एक्सपीरियंस या नॉलेज पहले होता तो शायद मैं आपके पास फिल्म बनाने से पहले आता, सीखने से। लेकिन मुझ जैसे बहुत सारे ऐसे फिल्म मेकर्स हैं जिनके पास ये नॉलेज नहीं है, तो मैं इसीलिए कोशिश करता हूँ। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपसे शुरू करूँगा कि इस वक्त तो कोविड का टाइम है, आप खुद भी फिल्म मेकर हैं। व्हाट वुड योर जनरल थॉट्स बी ऑन द इंडस्ट्री एट द मोमेंट? देखिए, इंडस्ट्री इस वक्त बिल्कुल अपना जो है ना, एक तो हम राइज करने की पोजीशन में थे। ठीक है, अभी राइज हम कर रहे थे, तो ये कोविड आ गया। कोविड से आके सारे मसले मसाइल जो है ना फिर वहीं पे आकर रुक गए हैं। हम अपने मसाइल को साथ लेके जो है ना चल रहे थे, लेकिन फिर भी एक जुनून के साथ फिल्म मेकिंग जो है ना, ये यंगस्टर्स जो फिल्में बना रहे हैं, अपना कुछ उनमें सीनियर भी हैं, तो तमाम मसाइल के बावजूद जो है ना एक पैशन के साथ काम चल रहा था। लेकिन ये आके एक ब्रेक होगी, तो ब्रेक मैं नहीं समझता कि ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए, सारी दुनिया के लिए है। सब इसी में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और इसी लाइफस्टाइल के साथ गुजारनी पड़ेगी जब तक वैक्सीन नहीं आती। लेकिन एक क्रिएटिव आदमी के लिए वो कभी भी फारिग नहीं बैठता। वो इस अरसे में हर किसी ने अपना अपना क्रिएटिव वर्क किया होगा, स्क्रिप्ट्स के ऊपर काम किए होंगे, नई प्लानिंग्स की होंगी। तो मैं नहीं समझता कि वक्त जो है ना वो ज़ाया हुआ है। तो आपने अपनी फ्यूचर प्लानिंग्स, अपना नए स्क्रिप्ट्स, ये वो सब उन पे काम कर रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं। फेयर इनफ, बिल्कुल ठीक। तो सर चलिए, वेरी वेरी इंस्पायरिंग मैसेज। बहुत सारे फिल्म मेकर्स जो हैं वो अपनी फिल्में रोक के बैठे हैं इस वक्त, अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज नो वन वांट्स टू रिस्क द इन्वायरमेंट। आपने अपने टाइम पे जो है एक 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 हिस्ट्री देखी है
और एंड आई वुड बिलीव आई वाज वेरी यंग. आपको क्या कंपैरिजन नजर आ रहा है फ्रॉम द टाइम व्हेन यू वर into actively filmmaking more films as compared to now? Have we fallen, or were we prospering, or were we almost in the process of getting up? देखिए, मैं जब आया 91 में मैं अपना यूनिवर्सिटी से फ़ारिग हुआ, लॉ किया, 2 मास्टर किए, फिर अपना जो है ना मैंने 93 में फ़िल्म शुरू की घूंघट एज़ ए प्रोड्यूसर। उससे पहले मैं एज़ ए असिस्टेंट डायरेक्टर जो है ना 2 फ़िल्में कर चुका था। ग्रेजुएशन के बाद एक 8-9 महीने का पीरियड जो है ना यूनिवर्सिटी एडमिशन के दौरान मिला था, उसमें मैं मुमताज़ अली खान साहब उनको असिस्ट किया। तो अपना कैरियर जो मेरा उस एज़ ए प्रोड्यूसर शुरू किया घूंघट, तो सैयद नूर साहब उसके डायरेक्टर थे और घूंघट हिट होगी। तो उस वक़्त भी मेरा जो बिलीव था, मेरा शुरू से यही रहा है कि जो ज़हन जो है वो चेहरों से ज़्यादा भारी होते हैं। क्रिएटिव लोग जो हैं उनकी ज़्यादा मेरे नज़दीक वैल्यू है, बजाए कि चेहरों के। तो घूंघट में हमने वो अरबाज़ को इंट्रोड्यूस करवाया, दिलीप को इंट्रोड्यूस करवाया, शान का कमबैक हुआ। तो सभी कहते थे कि ये पता नहीं क्या कर रहे हैं ये। लेकिन वो फ़िल्म जब हिट हो गई, तो उसके बाद फिर अगली फ़िल्म में मैंने एहसन खान को इंट्रोड्यूस करवाया, Right. निकाह। तो निकाह Truly. भी हिट हो गई। तो अपना इन दोनों फ़िल्मों के दौरान जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो ये था कि एक तो फ़िल्म इंडस्ट्री उस वक़्त रीजनल सिनेमा बड़े अरूज पर था। तो मैंने आके उर्दू फ़िल्में बनाई, तो पढ़े-लिखे लोग जो है ना वो कम रह गए थे। जावेद फ़ाज़िल साहब अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, आगा हसन अस्करी साहब, सैयद नूर साहब, अ, परवेज़ मलिक साहब भी उन दिनों थे, लेकिन काम 2-3 टीवी प्रोडक्शंस करके उन्होंने भी छोड़ दिया था। तो ये वो लोग थे जो पढ़े-लिखे लोग थे। तो बाकी जो लोग काम कर रहे थे उनके पास डिग्रियाँ तो नहीं थी, लेकिन एक ऑब्ज़र्वेशन थी, एक रीजनल सिनेमा की ऑब्ज़र्वेशन थी, मैं कभी भी उन्हें बुरा नहीं कहता। वो जिस मिज़ाज की फ़िल्में बनाते थे या वो जिन लोगों के लिए, जिन सिनेगोर्स के लिए वो फ़िल्में बनाते थे, वो उनका टारगेट ठीक था। तो उन दिनों रीजनल सिनेमा बड़े अरूज पर था। सिंधी फ़िल्में भी बनती थीं और Correct. पश्तो फ़िल्में भी बनती थीं। जब से ये न्यू वेव आई है, नया सिनेमा कल्चर आया है, मल्टीप्लेक्स, ठीक है? उससे कन्वेंशनल सिनेमा जो है, वो ख़त्म होता गया। कन्वेंशनल सिनेमा का ख़त्म होने का सबसे बड़ा हमें नुकसान जो हुआ है, वो ये हुआ है कि हमारा जो रीजनल सिनेमा है, वो रीजनल सिनेमा मर गया है। देखिए हमारे लिए जो एक मॉडल है वो इंडिया है। इंडिया की जो इंडस्ट्री आज भी जो है ना वो जहाँ पे खड़ी है उसकी वजूहात ये है कि उन्होंने अपने रीजनल एक सिनेमा को नहीं मरने दिया और कन्वेंशनल सिनेमा को नहीं मरने दिया। चाहे एवोल्यूशन प्रोसेस कितना भी आगे जो है ना वो लेके आए, लेकिन उन्होंने फ़िल्म जो है गरीब आदमी के लिए आज भी वहाँ फ़िल्म दस्तयाब है। हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम हुआ है, हमने फ़िल्म जो है अब सिर्फ़ अमीर आदमी देख सकता है। गरीब आदमी की जो है वो फ़िल्म पे रसाई नहीं है। वो अपना ₹1000 खर्च के फ़िल्म नहीं देख सकता, ठीक है? आपका रीजनल सिनेमा मर गया, आपका कन्वेंशनल सिनेमा मर गया, तो आप महदूद होंगे सिर्फ़ ये मल्टीप्लेक्स कल्चर की हद तक, ठीक है? इंडिया में क्या हुआ? इंडिया में उन्होंने अपना सिनेमा को मरने नहीं दिया। वो यूएफओ ले आए, अपना सैटेलाइट सिनेमा ले आए। उनका गरीब आदमी आज भी जो है ना वो ₹50 की टिकट लेके फ़िल्म देख रहा है। तो हमारे यहाँ सिनेमा ख़त्म हो गया टोटल। अब अलमिया ये है कि हम 8 या 9 शहरों के अंदर सिनेमाज़ हैं। उन सिनेमाज़ के लिए फ़िल्म बनाते हैं और फ़िल्म का बजट जो है ना वो 10 से 15 करोड़ तक चला गया है और कुछ लोग तो 20-20 भी कहते हैं। तो आपने विंडोज़ आपके पास कम है, जहाँ से आपने रेवेन्यू लेना है। आप लाहौर से आप जो है वो शुरू हो जाएँ। लाहौर से चलते थे हम, उकाड़ा में सन में थे, ठीक है जी?
साहिवाल में सिनेमा थे, ठीक, मियाँ चन्नू में सिनेमा थे, ठीक है सर। छोटे-छोटे जो साइडों के जो है ना जीटी रोड से जो है ना वहाँ छोटे-छोटे शहर वहाँ सिनेमा थे, ठीक है। रहीम यार खान में सिनेमा थे, भावलपुर में सिनेमा थे, अपना सादकाबाद में सिनेमा थे, सक्खर बड़ा एक इम्पोर्टेंट स्टेशन था, बिल्कुल। नवाबशाह में था, मीरपुर खास में था। तो हैदराबाद कितने सिनेमा थे, कराची के बाद मेजर जो है ना वो होता था। अब इन सारे शहरों में सिनेमा ही नहीं है। इधर आप रावलपिंडी की तरफ चले जाएं, आपको लाहौर से चलते थे, आपको मरीब के कामों की, अपना वजीराबाद, जेलम, कितना बड़ा शहर है, बिल्कुल। ये आगे अटक, एबटाबाद, मरी 4 सन में होते थे कभी। तो ये बिल्कुल। सारा सिनेमा खत्म हो गया। जब ये सिनेमा खत्म हुआ तो गरीब आदमी के लिए जो है ना तफरी बिल्कुल खत्म हो गई। आप ये गवर्नमेंट को इस बात का एनालिसिस करना चाहिए कि ये जब से ये सिनेमा खत्म हुए हैं उससे लेके अब तक जो है ना क्राइम रेशो कितनी बढ़ी है इन शहरों में। सिनेमा का जो एक मेजर सोशल रोल होता है वो लोगों को एंगेज रखता है, ठीक है। और लोग फारग नहीं रहते, अगर उनके पास कोई फारग टाइम है तो वो अपनी मर्जी का सिनेमा देखते थे, बिल्कुल वो सही। क्राइम की तरफ नहीं जाते थे। तो ये हमारा बहुत बड़ा एक नुकसान हुआ है। अभी भी हमारी प्रोड्यूसर एसोसिएशंस की जो मीटिंग्स होती है गवर्नमेंट लेवल पे, मेरा सिर्फ यही होता है कि रीजनल सिनेमा जो है उसे जो है ना वो जिंदा होना चाहिए। सिंधी फिल्में बननी चाहिए, पश्तो फिल्में बननी चाहिए, अपना पंजाबी फिल्में बननी चाहिए, उर्दू सिनेमा तो हम बना ही रहे हैं। हम गरीब आदमी को एंटरटेनमेंट नहीं दे रहे, सिर्फ अमीरों के लिए फिल्में बन रही हैं। जब आप उस क्लास के लिए फिल्म बना रहे हैं तो वहाँ या आप मौज़ूआत की कमी आ जाएगी, ठीक है। वो सही। क्लास फिल्म देखने जाएगी तो वो अपना कोई मसला देखने नहीं जाएगी, ना उसका कोई मसला है, ठीक है। वो एंटरटेनमेंट लेने के लिए जाएगी। इसलिए हमारी फिल्मों का जो कामयाबी का रेशियो है वो ये रोम कॉम कॉमेडी फिल्में जो हैं ये यही फिल्में हिट हो रही हैं। जिस किसी ने भी सही। कोई दूसरी मौज़ूआती फ़िल्म बनाने की कोशिश की है, उसे मुँह की खानी पड़ी। तो आपका मौज़ू ही जो है ना, टॉपिक्स, कंटेंट जो है ना, वो भी ख़त्म हो गया। आप लिमिटेड हो गए उसमें। आपकी क्रिएटिविटी जो है ना, वो आपकी जकड़ी गई है। इसी तरह टेलीविज़न में हुआ है। मैं फ़िल्म से टेलीविज़न की तरफ गया हूँ, वो एक्सपीरियंस मैं लेना चाहता था। मैं शुरू से ही टीवी प्रोड्यूसर बनना चाहता था। अच्छा। बिल्कुल, मैं शहज़ाद खलील साहब अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे और सायरा काज़मी, ये मेरे फ़ेवरेट डायरेक्टर होते थे। राइट। तो मैं इन्हें आइडियलाइज़ करता था। मैं ये इन्हें समझता था कि ये दोनों टेलीविज़न के नज़रुल इस्लाम हैं। अच्छा, अच्छा। वाह! वाह! एस्थे इंडीड, इंडीड। एस्थेटिकली इतना खूबसूरत जो है प्लेस उनके जो है ना उस वक़्त भी होते थे। तो मैं जब टीवी पहला ड्रामा मैंने किया ये मेरा दीवानापन, तो राइट। मैंने उस वक़्त रियलाइज़ किया, मैं कहा या अल्लाह, ये एक मैं डूबती हुई इंडस्ट्री देख के आया हूँ, छोड़ के आया हूँ। तो ये इंडस्ट्री भी मुझे डूबती नज़र आ रही है, टीवी वाली भी। तो मुझे वो फ़ील हो रहा था कि ये बैलेंस आउट हो गया है इसका। वो आपके एक्टर्स इतने आपके ऊपर हावी हो गए हैं, चैनल्स के ऊपर जो है ना, चैनल्स भी एक्टरों के आगे बेबस होते थे। तो सही। रेट्स जो है ना वो इतने ऊपर चले गए हैं, वो प्रॉफिट रेशियो जो है ना वो चूँकि मैं प्रोड्यूसर भी था, मैं कहा ये प्रोड्यूसर की प्रॉफिट रेशियो भी आस्ते-आस्ते कम हो रही है, ये इंडस्ट्री डूबेगी। मेरा एक्टरों से भी जो है ना गुफ्तगू होती थी कि ये भाई सीधा कर लो, अपना किबला सीधा कर लो, ये इंडस्ट्री डूब जाएगी। आज आप इतने पैसे ले रहे हैं, कल आपको ये नहीं मिलेंगे। तो मेरी बातें बुरी लगती थी। तो आज वो टीवी इंडस्ट्री भी वहीं पे आ गई है। लोगों के पैसे चैनल्स में फँस गए हैं, नई प्रोडक्शंस नहीं शुरू हो रही, अपना जो है ना इन हाउस चैनल्स जो है ना वो प्रोडक्शंस चल रही हैं। वो इंडस्ट्री भी जो टीवी इंडस्ट्री में भी जो है ना वो भी। तो जब तक हम अपनी चीज़ों का एनालिसिस नहीं करेंगे, हम देखिए अब फ़िल्में जो हम बना रहे हैं, 20 करोड़ का बिज़नेस हो गया जी, 50 करोड़ का बिज़नेस हो गया। ओ भाई, जब आप कहेंगे कि 50 करोड़ रुपए का जो है ना हमने बिज़नेस किया है, एक्टर को नहीं पता कि प्रोड्यूसर को क्या आ रहा है। बिल्कुल ये ठीक।
एक्टर्स के रेट्स जो है ना वो आसमानों ऊपर चले गए हैं। आप के एक्टर करोड़ करोड़ रुपया मांगने लग गए हैं, ठीक है। उस बेचारे प्रोड्यूसर को तो पूछो जो हिट होके भी जिसे ना आ क्या रहा है। सबसे पहले तो सिनेमा आपको मार रहा है, ठीक है। सिनेमा सही। आपको अपना जो है ना एग्रीमेंट आपका 50% का होगा और वो आपको जो मिलेगा वो आपको मिलेगा 45% या 43%। वो टिकट्स, फ्री टिकट्स, ये वो फलाना जो है ना, ये सिनेमा सबसे पहले आपका इस्तेहसाल वहाँ पे कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आपका टैक्स कट जाएगा। फिर आप आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर के पास। सही। डिस्ट्रीब्यूटर ने ज़ाहिर है आपको एडवांस या एमजी दी हुई है, उसने अपना जो कमीशन लेना है वो तो उसका राइट है, ठीक है। फिर डिस्ट्रीब्यूटर भी आपसे टैक्स काटेगा। आप एक जगह सिनेमा पे टैक्स दे रहे हैं और दूसरी जगह डिस्ट्रीब्यूटर आपको शेयर दे रहा है, वहां पे आप टैक्स दे रहे हैं। बिल्कुल तो सही। फाइनली आपके पास जो बचता है वो आपके पास 35, 36, ठीक है। इस तरह आपके पास जो है ना रेशो आती है। अब उस रेशो में आपने 10 करोड़ रुपए की फिल्म बनाई है, तो वो भाई अगर तो 30 करोड़ रुपया करेगी तो जो है ना आप कुछ पैसे की शक्ल देखेंगे, अदरवाइज पैसा नहीं आएगा, ठीक है। मैंने अभी प्रोड्यूसर एसोसिएशन में भी चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट की थी कि हमें एक सेमिनार करना चाहिए अंडर वन रूफ, जो है ना सबको हमें बुलाना चाहिए, आर्टिस्टों को, टेक्नीशियंस को, ये वो, और एक क्लियर पिक्चर जो है ना वो हमें जो है ना दिखानी चाहिए उन्हें कि भाई ये फिल्म जो है बनती है, ये कहाँ कहाँ प्रोड्यूसर को क्या क्या करना पड़ता है और फाइनली एंड प्रोड्यूसर के पास क्या आता है, ताकि हम अपना बजट जब तक कट डाउन नहीं करेंगे, हम बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ रहे हैं, ठीक। मैंने जिंदगी में ये एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं। मैंने 3.5 करोड़ रुपए की इश्क-खुदा बना ली, ठीक है। मोहब्बतें सच्चियां उस वक्त मैंने 3 करोड़ रुपए की बनाई थी। चलो वो मैं एक जो है इसका एवोल्यूशनरी प्रोसेस, न्यू इन्वेंशंस जो जो आ रही थी वो उनसे मैं गो थ्रू हो रहा था अपनी इंडस्ट्री को अपलिफ्ट करने के लिए। अब आपके सामने मार्केट है। मार्केट आपकी जो है ना वो मैक्सिमम मैक्सिमम 4 से 5 करोड़ रुपए की मार्केट है, बिल्कुल ठीक। ठीक है। आगे जो है ना वो रेड लाइट है। आप फिर अपने जितने मर्जी शौक जो है वो पूरे कर लें, अगर आप ये कहेंगे कि आपको आपका पैसा वापस आएगा तो जी। वो तो भाई आप बहुत ही कोई नसीबों वाले होंगे तो आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। और वो भी पैसा उसी सूरत में आएगा अगर आपके साथ कोई पावर हाउस जुड़ा हुआ है, कोई चैनल आपके साथ है। बिल्कुल सही है। इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर जो है, इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर तो बेचारा बाहर आ गया। उसे अगर किसी चैनल की सपोर्ट नहीं मिलती, ठीक है, वो प्रमोशन नहीं उसे मिलती, तो लोग फिल्म देखने नहीं आते। क्योंकि पहले माजी के अंदर लोग फिल्म देखते थे इरादतन, आदतन, एक सिनेमा ठीक गोइंग है। हैबिट जो है ना वो थी, यार फिल्म देखनी देखनी है। क्योंकि अब फिल्म जो है ना एक गरीब आदमी के लिए बना रहे थे, उसमें अमीर आदमी भी जो है ना उसके लिए भी होती थी, गरीब आदमी के लिए भी होती थी। अब आप फिल्म बना रहे हैं सिर्फ जो है ना अमीर आदमी के लिए। तो अमीर आदमी जो है ना वो कैलकुलेट जरूर करेगा, यार मैं अपनी फिल्म को फैमिली को लेके जा रहा हूँ, मैं 10,000 रुपया खर्च कर रहा हूँ, ये फिल्म देखने वाली है या नहीं है। तो इट मीन कि वो अपना इरादतन जा रहा है, सही। आदतन नहीं जा रहा, बिल्कुल ठीक। ठीक बिल्कुल है। ठीक। तो अब फ़िल्म मेकर को सबसे पहले तो ये सोचना होगा कि यार मैं ये जो फ़िल्म प्लान कर रहा हूँ, उस मेरी फ़िल्म के ऊपर कोई बंदा ₹1000 क्यों खर्च करेगा? ठीक। उस क्यों का सवाल अगर आपके पास है तो आप भाई फ़िल्म बना लें। अगर उस क्यों का आपके पास जवाब नहीं है, तो मत पैसे ज़ाया करें। ये गवर्नमेंट जब तक जो है वो सपोर्ट नहीं करेगी, गवर्नमेंट कहाँ सपोर्ट कर सकती है? गवर्नमेंट सपोर्ट कर सकती है रीजनल सिनेमा को रिवाइव करने के लिए, इंसेंटिव दे सकती है जगह के लिए, इसे इंडस्ट्री तस्लीम किया जाए, बैंक लोन्स शुरू हो, ठीक है। जो सिनेमा अपना थिएटर बन चुके हैं पंजाब में, जो है ना अक्सरियत सिनेमा जो है ना वो थिएटर बन चुके हैं। वो वहाँ पे वो एक बेहुदा डांस वांस जो है ना वो ड्रामे चलते हैं, तो उस पे सबसे पहले बैन लगाया जाए। सिनेमा फ़िल्म के लिए बना है और वहाँ पे फ़िल्म ही चले। सही तो है। जब
जब तक आप अपना जो है ना ये नहीं खुलेंगे सनमा, इतने बड़े मैंने शहर आपको गिनवाए हैं जहाँ पे सनमा नहीं है, ठीक है? उन 8 शहरों के अंदर से हमने क्या इकट्ठा करना है, क्या आप फ़िल्म की मैं मिसाल दूँगा आपको चूड़ियाँ की। जी। चूड़ियाँ फ़िल्म ने उस वक़्त 40 से 45 करोड़ रुपए का बिज़नेस किया है जब 100% टैक्स होता था और टिकट रेट कम होता था। सही। इट मीन कि मार्केट जो है ना वो पोटेंशियल रखती है। उसके एक बिल्कुल। शहर का बिज़नेस मैं आपको बताऊँ, उकाड़ा का 1 करोड़ रुपए का जो है ना बिज़नेस है। तो जबरदस्त। हमें इंडस्ट्री जो है, इंडस्ट्री उस वक़्त तक नहीं चल सकती जब तक जो है ना आप अपना रीजनल सिनेमा जो है उसे उसके लिए एफर्ट्स करें और सिनेमाज़ के लिए एफर्ट करें। और सिनेमा जो है, सिनेमा वाले हमारे साथ उलझते हैं। हालाँकि सिनेमा और फ़िल्म मेकर का वो एक-दूसरे के बगैर चल नहीं सकते। अगर हम उन्हें सप्लाई नहीं देते, तो किस तरह सिनेमा चलेगा? इंडियन फ़िल्में तो हवा का झोंका है। कभी हमारे हालात जैसे पॉलिटिकल हमारा हालात रहते हैं, कभी खुल जाती हैं, कभी बंद हो जाती हैं। लेकिन मैं इंडियन फ़िल्म के खिलाफ नहीं हूँ। सही। इंडियन फ़िल्म ने जो है वो एक तो कॉम्पिटिशन की फ़िज़ा पैदा की है और हमारे जो नए फ़िल्म मेकर आ रहे हैं वो एक तो पढ़ लिख के आ रहे हैं। मैं ठीक। बहरहाल पाकिस्तान का पहला बंदा होऊँगा जिसने पूना फ़िल्म इंस्टीट्यूट में आफ्टर ग्रेजुएशन एडमिशन लेने की बड़ी कोशिश की। तो सही। मैं कामयाब ना हो सका। अच्छा। तो लेकिन मैंने एक काम किया, जो मैं सिर्फ़ आपके प्रोग्राम में जो है ना इसका ज़िक्र करूँगा। मैंने ये सोच लिया था कि यार ये जब तक फ़िल्म पढ़ाई नहीं जाएगी ना, वेरी गुड। इस इज़्ज़त नहीं मिलेगी। वेरी गुड। ये ये फ़िल्म नसाब में होना चाहिए। उस दौर में जब मैं आया, फिर जब कभी भी कोई मीटिंग्स होती थी, मैं सिर्फ़ जिस तरह मैं आजकल रीजनल सिनेमा और सिनेमा के ऊपर बात करता हूँ, मेरा एक ही फ़ोकस होता है, सही। ठीक है? उस वक़्त मेरा ये था कि हर मीटिंग में मैं ये कहता कि खुदा के लिए फ़िल्म को जो है ना इसे सिलेबस का हिस्सा बनाया जाए, इसे पढ़ाया जाए, इसे जो है इसे बावकार किया जाए। जब तक इसे आप पढ़ाएँगे नहीं, फ़िल्म को इज़्ज़त नहीं मिलेगी। तो उन दिनों परवेज़ मुशर्रफ का दौर था। मैं वैसे तो जो है बड़ा डेमोक्रेटिक आदमी और मार्शल लॉ के बड़ा खिलाफ हूँ मेंटली। बट उसका एक काम मुझे अच्छा लगा। वो जो हम कहते थे ना कि फ़िल्म पढ़ाई जाए, हम्म। उस बंदे ने इनिशिएटिव लिया। एनसीए के अंदर जो है ना फ़िल्म सेक्शन जो है राइट। वो कायम हुआ, बिल्कुल। ठीक है? बिल्कुल। फिर बिल्कुल। उसके बाद जो है सिलसिला वो चल निकला। फिर हर यूनिवर्सिटी के अंदर है वो फ़िल्म को जो है ना पढ़ाया जाने लगा। चाहे वो मैस कम्युनिकेशन के अंदर जो है ना एक सब्जेक्ट के तौर पे जो है फ़िल्म, टीवी जो है ना वो डाल दिया गया। सही। फिर यहाँ से बच्चे पढ़े और फिर बाहर जाने लग गए, बिल्कुल ठीक। ठीक है? कोई टोरंटो फ़िल्म स्कूल से पढ़ के आ रहा है, कोई न्यूयॉर्क फ़िल्म अकेडमी से पढ़ कर आ रहा है, कोई इधर हंगरी के स्कूल से पढ़ के आ रहा है। तो हमारे पास एक पूरी एक नस्ल जो है ना वो तैयार होगी, जो फ़िल्म को बाकायदा पढ़ के आई है। सही। ये तभी मुमकिन हुआ कि फ़िल्म को पढ़ाया जाने लगा, फ़िल्म को एक वक़ार मिला। तो आज जो हमारे मेकर्स हैं, वो तो टेक्निकली तो वो जो है ना उनको कंप्लीट अवेयरनेस है, क्योंकि इस वक़्त हम जो भी काम कर रहे हैं, जिन कैमराज़ पे कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं है कि आउटडेटेड है। एब्सोल्युटली। बिल्कुल ठीक। जो हॉलीवुड में यूज़ हो रहा है, वही हम कर रहे हैं, ठीक है? सही। पोस्ट प्रोडक्शन में आ जाएँ, कलर ग्रेडिंग, कलर करेक्शन उसमें आ जाएँ, हम उसी मशीन पे काम कर रहे हैं जिस मशीन पे हॉलीवुड में हो, ठीक है? साउंड, सही। ठीक है? चाहे वो हम इंडिया से जाके करते हैं, चाहे वो हम थाईलैंड से करते हैं, लेकिन सही। उसी इक्विपमेंट पे करते हैं, उन्हीं मशीनों पे करते हैं जिन पे हॉलीवुड की फ़िल्में बनती हैं या इंडिया की जो है। इसलिए अब हम ये नहीं कह सकते कि यार हम टेक्निकली बहुत पीछे हैं। बिल्कुल जब ठीक। मैं आया था उस वक़्त नेगेटिव के ऊपर जो है फ़िल्म बनती थी, सही। ठीक है? नेगेटिव से वो अपना जो है ना व्यू फाइंडर नहीं होता था हमारे पास, 2C कैमरा होता था।
सही। तो मुझे तो शुरू दिन से जो है ना वो अपना फ्रेम बनाने की खुद आदत थी। वो कैमरामैन को जबरदस्त। फ्रेम आगे जो है ना वो दिया है, तो अब चूँकि आपके पास मॉनिटर नहीं है, कैमरा मैन साहब जो है ना वो अपनी मर्ज़ी से थोड़ा-सा जो है ना वो कर देते हैं, तो फिर जब आप उसके रशमेंट देखते थे स्क्रीन पे, तो आपको यार मैंने तो अपना जो है ना ये फ्रेम ये रखा था, बिल्कुल भाई सही। आपने ये क्यों इसे हिला दिया? ये मैं सही। समझता हूँ कि ये बड़ा अगर आप एस्थेटिकली जो है ना बेहतर करना चाहते हैं चीज़ों को, तो आप बड़ी मेज़रमेंट के साथ काम करते हैं। कितनी ठीक। कंपोज़िशन रखनी है, कितना उसे रखना है, कितना वो जो है ना डायलॉग जो है वो किस लेंस के अंदर आना है। बिल्कुल सही। तो वो रशमेंट बनते थे, उससे फिर लूप्स बनते थे, उसको स्क्रीन पे चला के उसकी डबिंग होती थी, फिर अपना जो है ना उसका एक अलग प्रोसेस होता था साउंड का। ये फ़ोली इफ़ेक्ट्स जिस तरीके से हम करते थे, मैं उन दिनों भी अपनी फ़िल्म के फ़ोली इफ़ेक्ट्स के ऊपर जो है ना वो बड़ा ज़ोर देता था। फाइनल मिक्सिंग के अंदर जो है ना वो जबरदस्त। खुद इफ़ेक्ट देने हैं, अपना जो है ना वो जबरदस्त। चीज़ें क्रिएट करनी है, यार ये किससे इफ़ेक्ट हो सकता है, ये किससे हो सकता है। तो बदलते हुए हालात को देखते हुए जो है ना, मैंने पैसे कमाने की जो है ना वो तरफ नहीं रहा। मैंने अपनी फ़िल्म को अपग्रेड करने का जो है ना वो सोचा। पाकिस्तान में सबसे पहले एचएमआई लाइट्स जो है ना वो मैंने यूज़ की। पाकिस्तान की पहली डीआई फ़िल्म मेरी है, ठीक है? मैं चल। फ़िल्म एक शुरू की सलाख़ें, बिल्कुल। तो अपना राशिद ख्वाजा साहब बड़े प्रोफ़ेशनल प्रोड्यूसर हैं। तो वो कहने लगे यार ये प्रोजेक्ट मुझे दे दो। मैं कहा सर आप ले लें, लेकिन एक शर्त है कि मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है कि मैं इसे जो है ना इसकी साउंड जो है वो बैंकॉक से करवा सकूँ। मैं एक एक्शन फ़िल्म ऐसी बनाना चाह रहा हूँ जिसमें साउंड इफ़ेक्ट्स ये वो फलाना-ढिमकाना। मुझे कहने लगे सही। यार मेरा भी यही मैं भी इसी तरह का ही काम करना चाहता हूँ। तो उस फ़िल्म के ऊपर जो है ना हमने काम किया। उसमें बड़ी-बड़ी चीज़ें जो हैं नई हुई और ठीक। प्रोड्यूसर का जो रोल होता है, वो उसमें एक प्रोड्यूसर का रोल भी था। और एक सही है। डायरेक्टर का जो रोल होता है वो एक कंप्लीट एक टीम वर्क जो है ना उसकी एग्जाम्पल है वो। उसमें डिस्ट्रीब्यूटर का बड़ा रोल था नदीम मांडीवाला साहब का। जिस सही। तरीके से उन्होंने इस फ़िल्म को जो है ना डिस्ट्रीब्यूट किया, तो जिस तरह उन्होंने इसकी मार्केटिंग की, वो एक प्रोफ़ेशनल वे था। सही। लेकिन ना हमारे यहाँ सीखने का अमल जो है ना वो नहीं था यहाँ पे ना। हम क्रिटिसाइज़ ज़्यादा करते थे। वो ये पढ़े लिखे लोग आ गए, ये फ़िल्म को कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं, फ़िल्म महँगी कर दी है इन्होंने, ये वो। हालाँकि मैंने ये बाहर काम नहीं किया। मैंने जितना काम किया, अपना काम किया, सिर्फ़ एक फ़िल्म में मज़दूरी की, वो सलाख़े की। उसमें भी सही। मुझे प्रोफ़ेशनल टीम मिली, तो हमने वो प्रोफ़ेशनली किया। थाईलैंड के अंदर मुझे काम करने का मौका मिला, सीखने का मौका मिला। टेक्निकल स्टूडियो में हमने मिक्सिंग की थी, वहाँ पे लेज़ मैकेन्ज़ी होते थे, हेड जो है ना, वो ऑस्कर ज्यूरी के जो है ना वो मेंबर थे साउंड के। अच्छा। एक फैंटास्टिक। रिचर्ड होता था अपना हॉलैंड का। और मैं फिर अपना जो है ना राफ़ी साहब मैं कहा मुझे अल्लाह ने ये चांस दिया है, मैं सीख लूँ इनसे। तो मैं बिल्कुल। एक स्टूडेंट की तरह जो है ना रिचर्ड से दोस्ती की। लेज़ मैकेन्ज़ी साहब तो ख़ैर उम्र में बड़े थे, लेकिन मैं उनकी रिस्पेक्ट बड़ी करता था। फिर वो मिक्सिंग के दौरान आ जाते थे, वो समझाते थे सही। चीज़ें जो। सही। तो वो मुझे बड़ी एक लर्निंग मिली इससे। बिल्कुल। तो अब आ जाते हैं आज की तरफ हम। सही। आज हम फ़िल्में बना रहे हैं, लेकिन फ़िल्म के अंदर एक जो फ़िल्म की रूह होती है, वो समहाउ कहीं न कहीं लैक करती है, अच्छा। ठीक है? देखिए इंडिया के अंदर जो फ़िल्म है, वो हर तरह की फ़िल्म बन रही है, ठीक है? हर तरह का एक्सपेरिमेंट हो रहा है और हर तरह की ऑडियंस है वहाँ पे, हर तरह की फ़िल्म देखने वाला लोग मौजूद हैं। यहाँ हमारा एक मखसूस हल्का है, जो फ़िल्म देखता है। हम उस हल्के के लिए फ़िल्म बना रहे हैं। अब बेहतर शुरू हुई है, लेकिन मैं नहीं समझता कि जिसने बनाई है उसने वो पैसे पूरे किए होंगे, या आपने फ़िल्म बनाई थी, आपने पैसे पूरे किए हैं, या लाल कबूतर बनी थी उसने पूरे किए, या मैंने सलूट में क्या मैंने जो है ना इतने पब्लिसिटी के पैसे उसमें खर्च किए थे डिस्ट्रीब्यूटर ने,
उससे कम जो है ना सिनेमा से जो है ना वो पैसे आए थे। तो ये ये जो फ़िल्म मेकिंग है ना, जो अपने जोरे बाजू के ऊपर इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर बना रहे हैं, जब तक इन्हें साथ नहीं मिलेगा किसी चैनल का, किसी पावर हाउस का, प्रमोशन का, ठीक है, आज ज़रा थोड़ा-सा एक एडवांटेज हो गया है, अगर आपके पास चैनल नहीं भी है, तो आप सोशल मीडिया पे इस हद तक जो है ना पब्लिसिटी कर सकते हैं कि लोगों को मेंटली कन्विंस कर सकते हैं सिनेमा आने के लिए। लेकिन उसके लिए भी फिर हमें सही। ये सोचना होगा कि हमारा बजट क्या है? हमें फ़िल्म अपनी मार्केट के मुताबिक अभी बनानी चाहिए। अभी हमें वो मेरा भी दिल करता है, मैं अभी बड़ा एक कॉस्मेटिक फ़िल्म बनाऊँ संजय लीला भंसाली की तरह या कमाल मूवी साहब की तरह। बट मैं अब सारे प्रोसेस से गुज़र चुका हूँ। मुझे एक-एक चीज़ का पता है कि यार ये रिटर्न इसका होगा या नहीं होगा। मुझे बिल्कुल सिनेमा ठीक। चलाने का शौक हुआ, मैं डिस्ट्रीब्यूटर भी रहा, मैं प्रोड्यूसर, राइटर, डायरेक्टर सब फ़ील्ड में मैंने काम किया। सही। तो अभी हमें अपने ख्वाब जो है ना, उन्हें ख्वाबों को जो है ना, ज़रा सँभालना होगा और मार्केट के मुताबिक बजट के अंदर फ़िल्म बनाना होगा। जब तक रिटर्न नहीं आएगा प्रोड्यूसर को देखें अगर इसी तरह हम फ़िल्में बनाते रहे, 10 करोड़ की बना ली, 15 करोड़ की बना ली, 20 करोड़ की बना ली, इन द एंड रिज़ल्ट आया कुछ नहीं। आप ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाएँगे। बिल्कुल ठीक। जो एक बिल्कुल ठीक। दफ़ा फ़िल्म बनाएगा वो भाग जाएगा। कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ आते हैं, उनको एक होता है वतन की मोहब्बत होती है कि चलो यार इंडस्ट्री राइज़ कर रही है, 50 करोड़ का बिज़नेस हो गया, ये हो गया, वो हो गया। वो बेचारे आगे इन्वेस्ट करते हैं, जब फाइनली रिज़ल्ट आता है, तो उसके बाद वो गालियाँ निकालते हुए भाग जाते हैं। बिल्कुल सही। तो बिल्कुल हमें ठीक। अपना बहैसियत फ़िल्म मेकर जो है, वो एक किबला जो है, वो दुरुस्त करना बड़ा ज़रूरी है। उसके बगैर हम राइज़ नहीं कर सकते। हम ऐसे-ऐसे ही रहेंगे, कभी ये हो गया, कभी ये हो गया। टेक्निकली अब कोई मसला नहीं है। सही। हमारे जो डायरेक्टर्स हैं, टेक्निकली उन्हें कंप्लीट अवेयरनेस है। एस्थेटिकली दे आर गुड। वो सबने अपना-अपना जो है ना साबित कर दिया। जिस वक़्त मैं इंडस्ट्री में आया था, उस वक़्त एक डायरेक्टर सैयद नूर साहब थे, ठीक है? बिल्कुल सैयद ठीक। नूर साहब के ऊपर इतना लोड था, उसमें 30-30 फ़िल्में, एक बंदा 30 फ़िल्में इकट्ठी बना रहा है। तो मैं उस वक़्त सोचता था मैं उस वक़्त एक न्यूज़पेपर में स्टेटमेंट भी दिया था कि ये इंडस्ट्री गिर जाएगी, हमें 10 और सैयद नूर चाहिए, बिल्कुल ठीक है? सही। दूसरा सैयद नूर कोई आ नहीं रहा था, तो वो वही हुआ। वो इतना लोड एक बंदा कैसे उठा सकता है? तो अब हमारे पास डायरेक्टर्स की एक नई खेप आई है और वो अच्छा काम कर रहे हैं। काम उनका बुरा नहीं है, उनको ज़रूरत अच्छे प्रोड्यूसर की है। प्रोड्यूसर का एक बड़ा अहम रोल होता है। अगर कोई ये कहे कि प्रोड्यूसर के बगैर कोई फ़िल्म बना ले तो वो एक्सेप्शनली जो है अच्छी बन सकती है। अदरवाइज़ एक जेन्युइन प्रोफ़ेशनल प्रोड्यूसर जिसे हर डिपार्टमेंट के मतलब आगाही हो, जिसे मार्केटिंग का भी पता हो, जिसे क्रिएटिविटी भी उसके अंदर हो, ऐसे प्रोड्यूसर्स की हमें बड़ी अशद ज़रूरत है। इस वक़्त सिर्फ़ हमें प्रोड्यूसर चाहिए जो प्रोड्यूसर नहीं है। सही। इंडिया में कॉर्पोरेट सेक्टर आया, पहले उन्होंने फ़िल्में ले ली, राम गोपाल वर्मा से फ़िल्में ले ली, फलाने से एग्रीमेंट कर लिया। वो एकदम जो है ना रिलायंस जो है ना वो बर्बादी की तरफ जो है ना चल पड़ा और जो है ना ज़ी वाले और रोज़ वाले ये वो सब कुछ। फिर सही। उन्होंने प्रोफ़ेशनल लोगों को एग्ज़ेक्टिव प्रोड्यूसर्स हायर करना शुरू किए, बिल्कुल ठीक। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। ठीक है? बिल्कुल सही। तब जाके वो सँभले वरना जितना वो कॉर्पोरेट सेक्टर आया था वो बिल्कुल कोलैप्स कर जाना था उसने। एग्ज़ेक्टिव प्रोड्यूसर वो प्रोफ़ेशनल बंदे को हायर करके जो है ना देखिए फ़िल्म आप कोई चीज़ क्रिएट करते हैं, तो हम किसी सीनियर को दिखाते ही नहीं है कि यार ये ज़रा देख लो मेरा काम है ये चेक कर लें। मैंने शुरू से नज़रुल इस्लाम साहब को फ़ॉलो किया। नज़रुल इस्लाम साहब फ़िल्म बनाते थे तो वो हमारे एक बहुत सीनियर डायरेक्टर थे इशफ़ाक़ मलिक साहब। इशफ़ाक़ मलिक साहब को अपनी फ़िल्म की जो है ना वो अपना जो है ना वो स्क्रीनिंग करते थे, उन्हें इनवाइट करते थे, फिर उनसे जो है ना वो पूछते थे कि ये कुछ गलत तो नहीं हो गया, कुछ ये तो नहीं हो गया।
तो वो बिल्कुल। इस तरह जो है ना, क्यों? उन्होंने तो साबित किया था, अच्छी-अच्छी फ़िल्में बना के साबित किया था। उन्हें क्या ज़रूरत थी अपनी हर फ़िल्म को दिखाने की? नहीं, एक चेक होना बड़ा ज़रूरी है। एब्सोल्युटली, शायर एब्सोल्युटली। हैं, वो अपनी इस्लाह क्यों करवाते हैं? बड़े से बड़ा शायर भी होता है ना, वो अपने किसी हमअसर को या जो उसका दोस्त होगा उसे ज़रूर भेजेगा, यार ज़रा ये देखना भई। बिल्कुल तो ठीक। हमें इस वक़्त जो है ना, एक जेन्युइन प्रोफ़ेशनल एग्ज़ीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स की ज़रूरत है, जो फ़िल्म सही। के हर शुबा के मुतल्लिक़ जो है ना, वो जानता हो। और दूसरा जो मैंने सेमिनार का ज़िक्र किया था कि उस सेमिनार के अंदर अंडर वन रूफ सबको बुलाया जाए और सबके साथ डिस्कशन की जाए, भाई ये फ़िगर-शिगर जो है ना, ये सही नहीं होते। प्रोड्यूसर के पास इन द एंड कुछ नहीं आ रहा, तो लिहाज़ा चीज़ें दुरुस्त की जाएँ। आर्टिस्टों के पैसे जो है ना, वो अपना जो है ना, वो कम किए जाएँ। पोस्ट प्रोडक्शन अब अलमिया ये है कि यहाँ हम पोस्ट प्रोडक्शन करते हैं, तो यहाँ हमें महँगी पड़ती है, इंडिया जाके करते हैं बिल्कुल ठीक। सस्ती पड़ती बिल्कुल ठीक। है। एक तो हम अपना पैसा बाहर लेके जा रहे हैं, तो दूसरा यहाँ कैसे जो है ना इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी? गवर्नमेंट गवर्नमेंट क्या कर सकती है? गवर्नमेंट एक पूरा पोस्ट हाउस बना सकती है। गवर्नमेंट के लिए कोई मसला नहीं है, कोई 15-20 करोड़ रुपया जो है ना खर्च करना, ठीक है? बहुत सारी बिल्डिंग्स भी इनके पास खाली पड़ी हैं। तो गवर्नमेंट एक पोस्ट हाउस बना दे, वो आप एक सब्सिडी दे दे। आप इंडिपेंडेंट फ़िल्म मेकर हैं, मैं इंडिपेंडेंट फ़िल्म मेकर हूँ। चलो यार मेरे पास जो पैसे आए, चीज़ें हैं, मैं एक फ़िल्म बनाना चाहता हूँ। मुझे ये तो हो कि यार मुझे एक पार्टिसिपेशन मिल रही है, सब्सिडी मिल रही है मुझे। इंडिया का सिनेमा आज जहाँ पे है उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। हुँ। वहाँ डे वन से जो है ना उन्होंने रियलाइज़ किया, नेहरू का बड़ा एक अहम रोल है, आज इंडियन सिनेमा जहाँ पे है। नेहरू ने उस वक़्त रियलाइज़ कर लिया था कि जो है ना ये सिनेमा जो है, इससे हमें आगे निकलना है। उस शख्स ने फ़िल्म फेस्टिवल्स की इब्तिदा की। ठीक। फ़िल्म फेस्टिवल्स का वो कहते हैं कि मेरे जो मेकर्स हैं, इनको दुनिया की फ़िल्म जहाँ बन रही है, उस वक़्त तो ये दौर नहीं था ना कि वीसीआर और ये वो, आस्ता-आस्ता हम कहाँ आ गए, अब तो बिल्कुल क्लिक सही। करते हैं तो फ़िल्म आ जाती है। तो उसने फेस्टिवल जो है ना उसका आगाज़ किया कि दुनिया भर की फ़िल्में जो है ना वो लगे, हमारे मेकर्स जो है ना वो उनसे मिले, अंडर वन रूफ डिस्कशंस एब्सोल्युटली। हों, सारे मुल्क की फ़िल्में जो है ना वो देखी जाएँ और इनको एक ट्रेनिंग हो, एक आगाही हो कि दुनिया में क्या हो रहा है। तो ये सही। बुनियाद उस बंदे ने रखी। फिर नेहरू की जो है एज़ ए प्राइम मिनिस्टर बड़े-बड़े आर्टिस्टों के साथ पर्सनल दोस्तियाँ थी, डायरेक्टर्स के साथ। नेहरू सही। की जब डेथ हुई है तो महबूब साहब को हार्ट अटैक हो गया, वो इसी गम में मर गए। ये ताल्लुक था अपना प्राइम मिनिस्टर का और डायरेक्टर का। महबूब साहब जिन्होंने मदर इंडिया बनाई है। फिर दिलीप साहब के साथ जो है ना राज कपूर साहब का जो है ना देवानंद, ये डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को कॉल करते थे। यहाँ तो रसाई नहीं है भाई, यहाँ आप आपको क्या-क्या उनसे जो है ना नवाज़ा जाता था, अपना जो है ना वो मैं ज़िक्र नहीं करना चाहता। मैंने तो अपने आउटडोर में कानों में से सुना हुआ है, कि ये वो लोग आ गए हैं। इस प्रोसेस से गुज़रे हैं। सही। ये गवर्नमेंट कोई भी गवर्नमेंट ये रियलाइज़ ही नहीं करती कि सिनेमा की इम्पोर्टेंस क्या है। सिनेमा जो है वो आपके आपके कल्चर का रिफ्लेक्शन है। सिनेमा टूरिज़्म के लिए सबसे बड़ा टूल है। इस वक़्त हमारे मुल्क को टूरिज़्म की बड़ी ज़रूरत है। हम किस तरह जो है ना फ़िल्म के ज़रिए टूरिज़्म को प्रमोट कर सकते हैं। फ़िल्म के ज़रिए मसाइल की निशानदेही देखें इंडिया में एक फ़िल्म सती के ऊपर जो है ना बनी, ठीक है? वो इतनी इफ़ेक्टिव फ़िल्म थी, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ। उस फ़िल्म से असेंबली में जो है ना सती के बारे में कानून बना। बिल्कुल सही। ये होती है फ़िल्म। बिल्कुल। फ़िल्म आपके सोसाइटी के जो बिगाड़ हैं, जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं, सोशल इविल्स हैं, वो आप उनको एक कहानी के थ्रू डिस्कस कर सकते हैं और उनका हल दे सकते हैं। आप लोगों को अवेयरनेस दे सकते हैं।
तो ये अगर इंडस्ट्री खुद रहो पौधे की तरह ही चलनी है तो फिर इसी तरह ही चलती रहेगी। ये कोई भी गवर्नमेंट हो, उस गवर्नमेंट को इन्वॉल्व होना पड़ेगा यार। गवर्नमेंट से पैसे नहीं मांगते फिल्म मेकर, बेकारी नहीं है भाई। आप सही। एक नेफ्टा का दायरा था, भुट्टो साहब ने बनाया, ठीक है। वो उसके जो अगराज़ो मकासद थे, उसका जो चार्टर था, वो बड़ा जबरदस्त था फिल्म के लिए जो है ना। लेकिन ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो है ना वो अदारा आ गया, तो ब्यूरोक्रेट्स का अपना एक अंदाज है काम करने का। फिल्म बिल्कुल। मेकर जो है वो ये फाइलों के पीछे नहीं भाग सकता यार। ये तो क्रिएटिव लोग होते हैं, आर्टिस्ट लोग होते हैं। सही। इंडिया में जो भी अदारे बने वहां पे उन्होंने हेड फिल्म मेकर को बनाया। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही। कि वो सीनियर फिल्म मेकर को जो है अगर आप हेड बना रहे हैं तो उसे सारा पता है यार, इसके प्रॉब्लम क्या है, इसके मसाइल क्या है, इन्हें हल कैसे करना है। सही, बिल्कुल ठीक। तो गवर्नमेंट को एक रोल अदा करना चाहिए। हमें जो है ना ये खुदरो पौधे फिर ज्यादा देर नहीं चलते। अभी इस वक्त जो एक रेजरेक्शन आया है और आप भी उसके अंदर मौजूद हैं, बहुत एक मुझे एक पता नहीं, आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, कह रहे जंग है, लाहौर की और कराची की एक जंग है। और इस जंग के अंदर जो है, लाहौर वाले बोलते हैं जी कराची वालों को फिल्म बनानी नहीं आती, कराची वाले बोलते हैं लाहौर वालों को फिल्म बनानी आती है। ये रूमर है या सच बात है कि हमारे अंदर यूनिटी खत्म हो गई है? देखो मैंने लाहौर में भी काम किया है, मेरी ओरिजिन लाहौर है। मैंने कराची में भी जाके काम किया। एक तो मैं ये समझता हूँ कि लाहौर जो है वो इस पूरे मुल्क की माँ है और कराची बाप है। कराची का रोल वही है जो बाप का रोल होता है, और लाहौर का रोल वही है जो माँ का रोल है। आप इस मुल्क की मैशत में ले लें, फिल्म में ले लें, किसी चीज़ में भी ले लें, ये इनके रूल ऐसे ही रहेंगे। कुछ लोग ऐसी बातें करते हैं, ठीक है, और कुछ प्रैक्टिकली भी हैं कि लाहौर वालों को जी कुछ पता नहीं है, लाहौर वाले अपना जो है उन्हें फ़िल्म बनानी नहीं आती, फ़िल्म तो कराची में बनती। मेरा भाई एक सिंपल सवाल है, इन्हें इन्हें उन तकलीफ़ों का, उन दर्द का नहीं पता। उस दर्द का मुझे पता है, जावेद शेख साहब को पता है और सैयद नूर साहब को पता है कि हम किस तरह अपने नेगेटिव जो है ना कंधों पे उठा के स्कैन करवा रहे हैं और फिर लेके जा रहे हैं। वहाँ से अपना जो है ना प्रोसेसिंग बाहर से हो रही है, फिर उसकी टेलीसेनिंग करवा के एडिटिंग करके फिर अपना जो है हम जा रहे हैं, फिर वहाँ से नेगेटिव कट रहा है। 6-6 महीने जो मैं 6 महीने जो है ना मुल्क से बाहर रहा हूँ। शेख साहब भी 6-6 महीने जो है ना उनकी पोस्ट प्रोडक्शन होती रही है। तो हम उस एवोल्यूशनरी प्रोसेस को जो है ना लेके चले। सारी दुनिया पंजाबी फ़िल्में बना के पैसे कमा रही थी, हमें भी पैसे कमाने आते थे। लेकिन मैं तो ये समझता था कि यार मुझे इसे इंडस्ट्री को अपनी को अपग्रेड करना है। हमें जो है ना इस एवोल्यूशनरी प्रोसेस के अंदर जो है ना न्यू-न्यू इन्वेंशंस आ रही हैं, तो उसमें से गुज़रना है। अदरवाइज़ हम खत्म हो जाएँगे, सही। ठीक है? तो हमने थाईलैंड में जाके काम किया, जनाब इंडिया में काम किया। अब इंडिया वालों को कन्विंस करना इस बात पे कि जनाब ये रेट्स हम नहीं दे सकते, हमारी मार्केट नहीं है, हमारा बजट इतना है, बेगिंग नहीं हम करते थे उनसे। उन्हें हम कन्विंस करते थे कि यार बिज़नेस हम लेके आए हैं लेकिन हमें हमारी मार्केट के हिसाब से ट्रीट किया जाए, सही। ठीक है? हमें वो रेट्स भी वहाँ मिले, कम मिले। तो अब फ़िल्म मेरी थी मोहब्बतें सच्चियाँ। जियो ने पहली फ़िल्म एज़ ए डिस्ट्रीब्यूटर जो है ना वो ली थी, ठीक। और मीडिया पार्टनर भी पहली फ़िल्म मेरी सलाखें थी, सही। जिसके जियो मीडिया पार्टनर बना था। ठीक है? अब मुझे जियो से 1 करोड़ रुपया मिल गया, ठीक। ठीक है? फ़िल्म मैंने बना ली थी। अब वो करोड़ रुपया मैं उठा के घर नहीं लेके गया। ये यार नया एक सेटअप शुरू हुआ है, फ़िल्म डीआई जो है डिजिटल इंटरमीडिएट पे जो है ना, इस प्रोसेस में कैसे जाएँगे? मैंने उस पे पैसे खर्च किए। मैंने उसकी मिक्सिंग यश राज स्टूडियो में की, क्योंकि सबसे लेटेस्ट मिक्सर वहाँ लगा था। मुझे सीखने की जुस्तजू थी। मैं कहा यार मैं इससे गो थ्रू हूँ, मैं इससे सीखूँ, सही। ठीक है? फिर उसे डीआई किया। डीआई का प्रोसेस उस वक़्त क्या होता था? उस वक़्त इंडिया में बहुत कम फ़िल्में जो है ना वो डीआई होती थी।
बिल्कुल ठीक। आपने नेगेटिव पे शूट कर लिया, ठीक है, फिर आपका नेगेटिव स्कैन होता था। सही, वो बिल्कुल सही। स्कैन होने के बाद आप स्मोक मशीन पे या फायर मशीन पे उसकी जो है ना वो कलर प्रोडक्शंस जी वो सारा कुछ करते थे। ठीक, उसके बाद फिर वो जो है ना एक नए नेगेटिव के ऊपर जो है ना वो स्कैन होता था। वो आपका डीआई नेगेटिव जो है ना वो बनता था। वाह! तो पहली फ़िल्म मोहब्बतें सच्चियाँ थी, सही, ठीक है? ठीक, पाकिस्तान में बेहतरीन। पहली डीसीपी फ़िल्म मेरी बनी है, मैं डिजिटल प्रिंट लेके आया हूँ पाकिस्तान में, इश्क खुदा का। अब इन लोगों को इन तकलीफ़ों का नहीं पता कि हम जो है ना फ़िल्म की प्रोसेसिंग करवा के, डीआई करवा के, साउंड करवा के मैं वो मेरे पास एक तस्वीर है कि दिल्ली एयरपोर्ट पे 26 प्रिंट मेरे पास पड़े हुए हैं ममता सचिया के और मैं उन प्रिंटों के ऊपर बैठा हूँ एयरपोर्ट जी, और बिल्कुल। मुझे उन्होंने पकड़ लिया कि जनाब ये तो जा ही नहीं सकते इस तरह। वो खैर मैं सारे अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके आया था लैब से ये वो सारा जो है ना मैंने सबसे पहले तो वहाँ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हायर किया। एक ठीक, प्रोसेस लीगल प्रोसेस मैंने पूरा किया तब मेरी जान छूट गया तो मैं वहाँ से लेके आया। तो अब कराची में जो हमारे भाई हैं, मेरे लिए तो लाहौर कराची में कोई फ़र्क नहीं है, ना ही हमने एब्सोल्युटली। महसूस किया है। अब उनको इन तकलीफ़ों को नहीं पता कि भाई हमने तो प्लेट में रख के आपको फ़िल्म दी है कि भाई ये इस प्रोसेस से फ़िल्म को हम गुज़ार के ले आए हैं, यहाँ तक ले आए हैं। आपने वहाँ से जंप लिया जब टेक्नोलॉजी वाइज़ जो है ना हम ऐसे बराबर आ गए। ठीक, ठीक, तो सही। उसमें किस तरह जो है ना आप सैयद नूर साहब को अवॉइड कर सकते हैं, जावेद शेख साहब को अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है? इवन सज्जाद गुल साहब, उन्होंने अपनी फ़िल्मों का जो है ना वो हांगकांग वगैरह से काम-वाम करवाया, दीवाने तेरे प्यार के, वो सारी चीज़ें जो हैं। तो सही, फ़िल्म को टेक्निकली जो है ना वो अपग्रेड करने में जो है ना लाहौर का एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। फेयर, बिल्कुल ठीक। आगे जो जिस तरह का मैंने वो सोशल सेटअप आपको बताया, हमारा वो सोशल सेटअप खत्म हो गया, ये मल्टीप्लेक्स ठीक, कल्चर आ गया, उसमें जो है सही, ना, उन्होंने आके एक नया जो है ना, वो एक डिस्टेंस और वो खड़ा कर दिया, ठीक है? बिल्कुल ठीक। आप एग्ज़िबिटर से बात करें, वो लाहौर वालों से बात नहीं करेंगे, क्योंकि अच्छा, लाहौर वालों को सब पता है, सब नक्शे का पता है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। बिल्कुल तो ठीक। फिर आर्टिस्टों के अंदर अपना जो है ना अ, ये एक बड़ा कड़वा सच है। आप किसी आर्टिस्ट से बात करें तो वो अपना जो है ना वो लाहौर की फ़िल्म करने से जो है ना कतराएगा। ऐसा क्यों है सर? ठीक है? अगर यकीन करें आप, लाहौर के अंदर आज भी फ़िल्म है, आज भी लोगों का जो है ना फ़िल्म बनाने को दिल करता है। क्योंकि लोगों ने यहाँ से करोड़ों रुपया कमाया, यहाँ पे नाम कमाया लोगों ने। उनके पास पैसा है। जब वो फ़िल्म बनाने के लिए निकलते हैं तो आर्टिस्ट उनकी फ़िल्म नहीं करते। बिल्कुल, ठीक है? आप इन एक रोक दिया आपने जो है ना, मेजर जो जिसका पार्टिसिपेशन है उन लोगों को, उन फाइनेंसर्स को, उन प्रोड्यूसर्स को रोक दिया है अपने रवैयों की वजह से। तो भाई नदीम साहब कराची से थे, गुलाम मोइनुद्दीन साहब कराची से थे, मोहम्मद अली हाँ, साहब हैदराबाद से हाँ, थे। हमने तो कभी महसूस नहीं किया यार वो हमारे मुल्क के थे। उनको वो इज़्ज़त जो है मिली है अपना जो है ना किसी ने ये तसव्वुर भी नहीं होता था लाहौर कराची का। इवन कि कराची की जब पार्टी आती थी, डिस्ट्रीब्यूटर आता था फ़िल्म खरीदने के लिए तो इतनी एक रिस्पेक्ट उसे दी जाती थी, उसके जनाब डिनर हो रहे हैं, उसे एक प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, कराची के डिस्ट्रीब्यूटर को। तो बिल्कुल ठीक। अब हमने जो है ना मैं आर्टिस्टों का नाम नहीं लेना चाहता, जी, ठीक है? लेकिन हमें अपना किबला दुरुस्त करना चाहिए। भाई, ये आपका रिज़्क भी वाबस्ता है। आप एक 60% जो है रेशियो है पंजाब की, आप उसे रोक रहे हैं फ़िल्म मेकर्स को भगा दिया आपने जो है ना, कि इन्हें फ़िल्म बनानी नहीं आती। ओ यार वो आज के डायरेक्टर्स को लेके फ़िल्म बनाएँगे, ठीक है? आज की टेक्नोलॉजी पे फ़िल्म बनाएँगे, आज का सारा कुछ उन्हें वो पागल है अपना पैसा जो है ना ज़ाया करेंगे। लेकिन आपने अपने रवैये से जो है ना उन्हें भगा दिया। नुकसान किसका हुआ अल्टीमेटली?
इंडस्ट्री का। इंडस्ट्री का। तो ये हमें अपना जो है ना चीज़ें अपनी जो है ना वो दुरुस्त करनी होंगी, अपने किबले हमें दुरुस्त करने होंगे। थैंक यू सो मच, आई एम ऑनर्ड। और मेरे ख्याल से ये एक छोटी सी कोशिश जहाँ पे हमारे सीनियर्स और हमारे वेटरन्स इसके बारे में बात करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा। कोई चेंज आया ना आए वो तो नहीं मुझे पता, लेकिन बातचीत और डिस्कशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई एम वेरी थैंकफुल कि आपने जो है एक हिस्ट्री और ट्रेजर पास ऑन किया है, जो मेरे ख्याल से काफ़ी व्यूअर्स और काफ़ी नए फिल्म मेकर्स देख के, आई होप देख के समझें कि कौन सी स्ट्रगल के थ्रू हम इस लेवल पे पहुँचे हैं। बहुत आसान है एक अखबार में रिव्यू लिखना कि एक फिल्म मेकर को फिल्म बनाने नहीं आती है, या एक कन्वेंशन फिल्म मेकर को फिल्म बनाने नहीं आती है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता वो कन्वेंशन फिल्म मेकर कहाँ से कहाँ फिल्म को लेके आया है। वंस अगेन थैंक यू सर, अब अपना ख्याल रखिएगा, प्लीज़ बी सेफ इन कोविड टाइम। आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी और आपके आने वाले फ्यूचर प्रोडक्ट्स का भी बहुत बेसब्री से इंतजार है। प्लीज़, थैंक यू थैंक सर। यू। थैंक यू थैंक सर। यू। अल्लाह शुक्रिया। हाफिज़ सर। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफ़िज़।